Srikar and Namaste Kyora to all of you. मेरा नाम भारवी है, भारवी भट्ट. Lately जब ये शादी हुई so I added my name as Burgess, so भारवी भट्ट Burgess. न्यूजीलैंड में मैं 13 साल से हूँ, 10 साल से पुलिस ऑफिसर हूँ. बहुत सारा कुछ कह रहा है लेकिन आधा तो इन सब बड़े बुजुर्गों ने बता दिया और तो मेरा अच्छा हुआ. 20 मिनट मेरा इजीली निकल जाएगा. First of all, just wanted to start with international students. 1, 2, 3. You just okay. Just to let you know, guys, कि आपको ऐसा लगेगा कि वो 13 साल से यहाँ पे हो, क्या तुमको पता हम पर क्या बीतती है, तुम्हें कैसे empathize कैसे होगा. But let me tell you one thing. All of us have been through one way or another. Maybe मैं यहाँ पे student visa पे नहीं आई, लेकिन मेरा भाई मेरे से पहले सिडनी गया था. वो जब गया तो 17 साल का था. जब वो गया तब मम्मी पापा की क्या हालत थी वो मैंने देखी है. वो वहाँ पे क्या करता था और बताता था वो डिफरेंट था. फिर जब मैं न्यूजीलैंड आई इमिग्रेट करके तो मेरे साथ जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वगैरह होते थे तो उनकी सिचुएशंस देखी. So trust me, we all in one way or another have 360-degree perspective and overview of what you all are going through. We know what you have been through. You guys are really lucky, although you are very few of here, that you have a forum like this. Honestly, it is an amazing forum. Make the most of it. Tell your friends and members, whosoever you know, to approach these people because they are the ones that will give you a hand. Why? Not just because it's their passion, but also because they can exactly know what you are feeling. They can feel because you are from our country, you are connecting in one way or another with our country. So everything will work out well. You need to be positive, as everyone said, so I don't need to go on that as much. Quickly. मैंने ये presentation इसलिए बनाया है क्योंकि this is based on the things that normally we come across. So इसमें मेरा कोई कसूर नहीं. This is the color that we are, so you know that's not a तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना सबसे पहले हम लोग दुनिया अपनी छोटी सी दुनिया छोड़ के आते हैं. आप लोगों को रियली कॉन्ग्रेचुलेट. इट्स वेरी ब्रेव थिंग टू डू कि अपना कंफर्ट जोन, मम्मी के हाथ की रोटी, पापा का पॉकेट मनी, अपना मोटरसाइकिल, बाइक और काइनेटिक स्कूटी वॉटेवर छोड़ के आए हैं आप यहाँ पे. एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या पता कितना हज़ार का लोन लिया, वॉटेवर, आई डोंट नो हाउ मच. Most of us come with that responsibility. यहाँ पे इतना प्रेशर, पढ़ाई करना, जॉब ढूंढना और PR देखना, और फिर पेरेंट्स को भी टेंशन ना हो इसलिए बोलना कि मैं ठीक हूँ, मेरे ऑल अच्छा है. यहाँ पे प्रेजेंट ठीक होना, वहाँ पे जॉब जगल करना, फ्लैटिंग करना, क्लीनिंग करना, सब कुछ करना. It is not easy and I really congratulate all of you for that. Coming to the point, क्योंकि हम लोग क्लोज कम्युनिटी में से हैं, we are always answerable to everyone back home. यहाँ पे आने के बाद it is really interesting because suddenly you think इतने सारा independence, we don't know how to manage it, how to handle it, and that's where I find our kids falling into the bad hands of the people with the system and with the law. और मुझे ये भी पता है कि हमारे लोग यहाँ पे criminal बनने नहीं आते, but how to manage your independence, that's a very, very challenging part, and trust me, it's not you guys, everyone falls on this. But my main aim here is to let you guys know you need to manage yourself as well. Okay, quickly. This is my name, this is my contact details. Feel free to email me, feel free to contact me, and I will try my best. If I can't help you, I will try to put you guys through someone who can really help you. मेरा नंबर लिख लीजिए.
मैं भी आई थी न्यूजीलैंड, यही सब काम किया। शुरुआत में मैंने सेंट जेवियर्स में से इंग्लिश लिटरेचर किया है और थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ। मुझे IELTS में बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे, इमिग्रेट किया। एंड देन फर्स्ट थिंग आई कॉल ऑन द फोन फॉर अ जॉब एंड से कैन यू स्पीक इंग्लिश, एंड सामने से कोई इंग्लिश में बोलेगा, न्यूजीलैंड एक्सेंट, यू जस्ट फील व्हाट ऑन द अर्थ आई एम लिसनिंग टू दिस, यू नो। मैं तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, मुझे तो इंग्लिश इतनी अच्छी आती है, लेकिन इनको क्यों समझ में नहीं आती मैं जो बोल रही हूँ, और मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा वो क्या बोल रहे हैं। So again, it was like an accent thing. Then you need to have a Kiwi accent. That was the time when I came in, and New Zealand, it was very new for immigrants to understand Indian English. So that was the biggest challenge that I had. So what did I do? Okay, कहीं पे भी एक job मिले, एक job. So gas station, cafe में गई, coffee, Starbucks का इंटरव्यू, फोन कॉल आया, उसमें पूछा, वो वर्स्ट थिंग था, ऑस्ट्रेलियन था वो, और वो फ़ोन पे बोल रहा था। तो फ़ोन पे वो बोल रहा था, तो इतना मुझे खाली समझ में आया, 2:30 बजे सैटरडे को पार्नेल स्टारबक्स, इतना ही 3 ही चीज़ समझ में आया जब फ़ोन पे मुझे इंटरव्यू में बुलाया। एंड वेन रात को नींद नहीं आई, एंड प्लानिंग। And I had been working in India. I was in a corporate world. It wasn't a big deal for me. But just like Starbucks cake coffee. But you have to go. You have to give it a go, and you have to learn. I still can feel that feeling कि भाई वो interview दिया था, कैसा लग रहा है. I'm like, why do I feel like this? I had done this so many times. But hey, it's a new life, so you have to start with a scratch. So this was my progression. यहाँ पे मैं Human Resources Manager भी बन गई. उसके बाद फिर रियलाइज हुआ, why have I immigrated to New Zealand? ये सब जॉब तो मैं इंडिया में भी करती थी, इंडिया में भी घर है, इंडिया में भी गाड़ी है, एक्चुअली ड्राइवर भी था, कभी ज़्यादा गाड़ी साफ करने का भी नहीं आता था, और ये क्यों मैं यहाँ पे क्यों हूँ? इनिशियली सबको बोलते थे बच्चों के लिए आए हैं, then I thought, really? क्या हम बच्चों के लिए ही खाली आए? Then I had to be very, very honest to myself and say, nah, that's not the case. I'm here to pursue my dream. What was my dream? What is it that I was looking for? वो क्या नहीं है मेरे पास जिसको ढूंढने में यहाँ पे आई हूँ? सब कुछ था, तो मैंने सामने इतना सब छोड़ के आई हूँ, क्यों? Then I realized that I always wanted to be a police officer. लेकिन इंडिया में और गुजरात से, हम तो गुजराती हैं, बिजनेस वाले हैं, पैसा है घर में, क्या ज़रूरत है पुलिस में? Being a female, पापा बोलते थे IPS ऑफिसर बनो, लेकिन बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करो, लेकिन मैं तो हॉकी खेलती थी, तो कहाँ से होगा? Anyway, so I said, you know what? If I want to be in New Zealand, मैं इतना sacrifice कर रही हूँ, मेरी दिवाली, मेरी होली, मेरी नवरात्रि सब मिस कर रही हूँ, तो it has to be of some value. I'm here to pursue my dream. Okay, the goal is, if I pursue my dream, I stay here. If I can't, I go back. As simple as that. Made my mind. Exactly what our fellow speaker said. You need to have a plan. If you don't plan, if you fail to plan, you plan to fail. I had a plan. I worked my ass off. Sorry guys. मैंने बहुत मेहनत की. मुझे लगा 3 महीने में मुझे मिल जाएगा. तो नौकरी छोड़ के मैंने सोचा क्लीनिंग जॉब करते हैं. यहाँ पे क्या है? तो क्या हुआ, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और हमारे यहाँ कितने सारे काम वाली थी. हम कभी काम करेंगे, चलो हार्ड वर्क करेंगे. फ्लेक्सिबल आवर्स है, 2 बच्चे हैं मेरे, उनके साथ होके मैं ट्रेनिंग करूँगी. 3 महीने में हो जाएगा. ना 3 महीने में हुआ, ना 6 महीने में हुआ, ना 12 महीने में हुआ. 2 साल, 2 years. It took me 2 years to get to that point because I thought, you know, in India I would go for an interview. I know this is my job. Whatever I wanted, I always got it. I thought, it would be one of those. And it wasn't that easy. But you know what? One thing I knew, as a friend said here, attitude. What was the thing I had in me? I want this. What can I do to achieve it? I will go hard and hard and hard. Running was very hard. Pure vegetarian, so cold, coming from 45 degrees. Winter is hardly 15 degrees, is winter. एक स्वेटर हमेशा पूरा साल, जन्म तो एक ही स्वेटर चलेगा गुजरात में, तो कभी पहनने को मौका ही नहीं मिलेगा स्वेटर का. और यहाँ पे आने के बाद विंटर में you have to run. It was not easy, but persistence, hard work, and just wanted to do it for no matter what happens.
पुलिस तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन इतना इजी नहीं था जितना सोचा था। सोचा था कि पुलिस ज्वाइन करने के बाद यूनिफॉर्म पहन के दबंग का स्टाइल ग्रे बैंड्स पहन के चलेंगे तो थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, बट इट डजंट वर्क दैट वे। यहाँ पे तो पुलिस इज कम्युनिटी सर्विस, इट इज लाइक सोशल वर्क और कस्टमर सर्विस। इट्स नॉट पावर एंड कंट्रोल, नथिंग। एंड यू नीड टू नो पीपल, यू नीड टू लर्न देयर बॉडी लैंग्वेज, यू नीड टू नो व्हाट दे आर सेइंग। और मैंने कौन सा चूज किया जगह, काउंटीज बनूंगा। आइलैंड पीपल जो मतलब कि मैं अपने पूरी विंग में, सो रिक्रूटर्स में सबसे शॉर्ट, सब इतने लंबे लंबे पुलिस ऑफिसर में सबसे शॉर्ट। तो लाइन अप करने को बोले तो मेरे को कोई चिंता ही नहीं, मेरे को तो लास्ट में ही खड़े रहने का है। और हमारा जो गन है वो इतना बड़ा M4 कि यहाँ तक आता है, उसको लेके चलना है तो मेरे को ऐसा उठा के चलना पड़ेगा, उसको ऐसे पकड़ के करना है तो हाथ कांपने लगेगा क्योंकि इतना बड़ा है आपसे। बट वाज ओके। फिर आपको जाने का, फिर सब आइलैंड बॉयज है जो 14-15 साल के, लेकिन इतने हट्टे कट्टे हैं। हैंडकफ करने का तो कभी एक कफ में तो हाथ आएगा नहीं, 2 हैंडकफ लगाने पड़ेंगे तब तो यहाँ पीछे जाएगा। सो इट वॉज नॉट ईजी वर्किंग विथ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज हु डोंट नो हु यू आर। ये कौन है, कहाँ से आ गई है? ऑफेंडर से भी बात करो तो आधा आप बोलो, क्या समझ में नहीं आएगा, आप बोलो वो उसको नहीं समझ में आएगा। And how can you do that customer service? So it was a long way. Anyway, TV dream pursue किया। Yeah, okay. This is all about me, but not really. ये मेन पर्पस ये है, आप लोग न्यूबीज प्लीज लिख लीजिए नंबर्स। क्राइम स्टॉपर्स ये नंबर है, OH100 नंबर जो है आप लिख लीजिए। अगर आपको कोई रिपोर्ट करना है बट आपको आपका नाम नहीं देना, आपको थोड़ा टेंशन है कि नहीं भी मुझे बताना भी है लेकिन इंफॉर्मेशन है लेकिन अपना नाम नहीं जानना, फॉर क्राइम स्टॉपर्स, दे आर इन समवेयर इन इंग्लैंड, सो आपको कोई नहीं जानेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन रिपोर्ट दैट। याद रखिए आप, पुलिस यहाँ पे अच्छी है, वी आर कस्टमर सर्विस पीपल, ओके। पर 111 इसलिए ना फोन करें कि मेरा इमिग्रेशन का क्या स्टेटस है। 111 अगर फायर एम्बुलेंस और पुलिस है तभी फोन कीजिए। ओके, ये सब मैंने स्लाइड जब इसलिए बनाई थी जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नए नए आते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रास्ता ये, जैसे हमारे इंडिया में हम क्रॉस करते हैं रास्ता ऐसे ही चलते हैं बीच में, देन ये गेट इनटू एक्सीडेंट्स एंड कार क्रैशेस, तो इसलिए लिया था। बट अस्यूमिंग यू गाइस नो, यहाँ पे क्रॉसिंग के बिना क्रॉस नहीं करना वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। 20 मीटर्स अवे फ्रॉम यहाँ पे ट्रैफिक बहुत सीरियसली लिया जाता है, सो कैन यू प्लीज मेक श्योर डोंट वॉक विदाउट लुकिंग। Fatal fire is the biggest thing in police. Drink driving, speeding, intersections, restraint, high risk driver. यहाँ पे चलेगा can do attitude, इसमें नहीं चलेगा। Can do attitude नहीं चलेगा इसमें, you have to do this. You can't drink and drive. That is a no-no. If you drink and drive, it is considered as almost so serious that you will not get immigration. Am I right? Immigration considered? Will it be a big problem for? Yes. Will it be a problem? Yes. Well, people have been deported because of it. Yeah. Thank you. So this is a very serious problem. Please, 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 if you see anyone doing it, don't let them do it. 20 साल के हैं तो एक ग्लास भी नहीं चलेगा। आप कितने साल के हो भाई साहब? 19। तो आप तो पीना ही मत प्लीज। स्पीड लिमिट बोला है, एंड एवरीवन whosoever is driving, can you please make sure स्पीड लिमिट के ऊपर रहिए। डीमेरिट पॉइंट्स आएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर बोले पूछिए आपको डिटेल्स, प्लीज 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 गलत डिटेल्स मत दीजिए। दैट इज अ वन बिग थिंग यू डोंट डू। प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन। गाड़ी का वारंट लगाइए प्लीज, स्पीड लिमिट में रहिए, डीमेरिट से बचिए। अल्कोहल, हम लोग तो पंजाब से हैं जो उनको तो इतना पता नहीं, लेकिन गुजरात से जो है ड्राई स्टेट है उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि अल्कोहल मैनेज करना आता नहीं है। सिंपल एग्जांपल है, इंडिया में गुजरात से आई हूँ मैं, तो 22 साल की थी जब गोवा गई थी, तब पहली बार अल्कोहल थोड़ा ट्राई किया था और मुझे लगा था पता नहीं मैंने क्या कर दिया, अल्कोहल पिया मैंने। एनीवे यहाँ पे जब आए तो सबने बोला कि चलो यहाँ पे वाइन टेस्ट करते हैं कैसे हैं पीते हैं वाइन। तो
बोले वाइन, चलो वाइन। तो इतनी बड़ी शॉप होती है, तो शॉप में गए। फिर वो बंदे को बोला उनको वाइन चाहिए। तो बोले ओके, कौन सी वाइन चाहिए? फिर जो अच्छी वाली वाइन। बोले अच्छी अच्छी मतलब कैसी अच्छी? अच्छी मतलब अच्छी, कौन सी अच्छी आती है? बोले आपको कौन कितना पैसा चाहिए खर्च कर सकते हैं? हमारे पास पैसा है। So it was not going anywhere, just saying alcohol consumption. Let's come back to the point. अल्कोहल का हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ओकलैंड सिटी में है, जहाँ पे हमारे मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें ये है कि उनको अल्कोहल मैनेज करना नहीं आता, और फिर पब्लिक प्लेस में जाके इट बिकम्स अ वेरी बिग न्यूसेंस। सबसे ज़्यादा ट्रबल होती है, सबसे ज़्यादा हमारे और एशियन किड्स विक्टिमाइज होते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन अफोर्ड मनी। People from different backgrounds, meaning Pacific Island and Maoris, they get more aggressive, and if they challenge, और हमारे बंदे अगर सामने जवाब दिया, तो our people get really badly victimized, in the sense कि they smash bottle on your head, kick the head, really serious injuries. I don't want to scare you guys, but you have to be very, very careful when you drink alcohol. Getting with दूसरा सबसे सीरियस पॉइंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन कि व्हेन यू कंज्यूम अल्कोहल, स्पेशली बॉयज, एंड यू सम ऐसा है कि कोई लड़की तुम्हारे साथ बात कर रही है और तुमने उसको बियर ऑफर किया, एंड you are involving sexually with them, you really need to be very careful here, because intoxication, अगर आपको ऐसा कोई, अगर वो लड़की दूसरे दिन गई और बोली कि I have been raped, then you will have to prove whether you checked कि ये लड़की जिसको आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हुए हैं वो इंटॉक्सिकेटेड कितनी थी। अगर वो इंटॉक्सिकेटेड थी और फिर भी उसने हाँ बोला कि she admits, then also you will be criminally liable. It is that serious now. So you really need to be careful, not for yourself, for your friends as well, कि कोई भी random alcohol में consume होने के बाद consensual sex can be very risky. So please be careful. Drug people के लिए हमेशा aware रहिए। अगर आप बार में जाते हैं, कोई पीता है दारू, you have to be always aware of them. अगर तुमको लगता है कि यहाँ पे बवाल होने वाली है और वो बवाल करेगा और they are eye gazing you, just walk away from there. It's not worth it. Fighting in public place. यहाँ पे कोई फाइट इलीगल है, we take this fighting very seriously. दूसरा, इंडिया में अगर कोई लड़की पसंद है तो पीछे पीछे गए, खिड़की के सामने खड़े रहे, गुलाब फेंका, वो सब इंडिया में it's okay, it is kind of whatever, but यहाँ पे it is very serious. So please be careful. if अगर आपके कोई दोस्त को पहचान वाले कोई भी कुछ करते हैं, consider this is a stalking. Detectives यहाँ पे मतलब इतना सीरियस लिया जाता है कि डिटेक्टिव्स को इन्फॉर्म किया जाता है ये सब, and they will come to you and you will be looking at very serious charges. So please be careful. ज़्यादा चिल्लाना, भंगड़ा बनाना, बहुत मस्ती करना रात को लेट 12 बजे के बाद you will be considered as breach of peace. So be careful boys and girls. यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ये भी बहुत है कि ज़्यादा पैसे लेके घूमते हैं, जैसे हम इंडिया में घूमते हैं, प्लीज़ नहीं घूमिए। हमारे यहाँ पे यही टारगेट होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, न्यू कमर्स, ईजिली पता चल जाता है ऑफेंडर्स को। इंडियन है, कैश होगा, एशियन है, उसके पास गैजेट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इंडियन है तो गोल्ड होगा। प्लीज़ आप अपने बैंक लॉकर्स रखिए, उसी में रखिए, घर के अंदर कैश मत रखिए, गोल्ड मत रखिए। और फिर कोई बोलेगा कि मेरे यहाँ रख दो, फिर वो रखेंगे, फिर वो अंदर झगड़ा होगा। सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स, पुट इट इन द बैंक। पेइंग गेस्ट का भी यहाँ पे है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यहाँ पे। सो वट एवर यू गाइज डू, यू नीड टू नो द लेजिस्लेशन। यू गाइज आर लकी टू बी लिविंग इन दिस एज वेयर सब कुछ गूगल देवता है, उनको समझ करोगे तो देवता प्रकट हो जाएंगे और बताएंगे क्या क्या है ना। तो
just keep a mind, उसने बताया नहीं, you find out what is the situation. और पेइंग गेस्ट में भी क्या है, हाँ, कोई भी चीज़ में कोई बवाल मत करिए, झगड़ा मत करिए, जो भी है क्लियर रखिए बात। और उसमें भी 3 हफ्ते की नोटिस होती है, आइडियल सबको 3 हफ्ते की नोटिस देनी होती है। इट इज़ व्हेन इट इज़ वर्बल, आइडियल सिचुएशन में यही होता है। इवन टेनेंसी में भी कि आप किसी के घर पे जाते हैं तो रेंट पे रहते हैं, नॉर्मल अग्रीमेंट ऐसा होता है 3 वीक्स म्यूचुअल। सो इसमें ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, प्लीज़ फाइंड आउट ऑनलाइन और यू कैन आस्क मी और वी कैन हेल्प यू आउट। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक टू मच ऑफ योर टाइम। जितना हो सके दूसरे कम्युनिटी में जाइए, उनसे बातें कीजिए। दैट्स हाउ यू विल लर्न हाउ टू स्पीक द लैंग्वेज, हाउ पीपल रिएक्ट, हाउ दे कम्युनिकेट। यू नीड टू नो दोज थिंग्स। ये मेन चीज़ है। अपनी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखिए, उसका सीरियल नंबर्स, फोटोज़ वगैरह रखिए। और ये www.snap.org.nz प्लीज़ लिख लीजिए आप लोग, उसके अंदर आपका सब रिकॉर्ड रखिए। वन थिंग यू नीड टू नो इज, हम लोग सर्च वारंट जब होता है हमारा, इतनी सारी छोटी छोटी आइटम्स मिलती हैं, दे आर ऑल अनक्लेम्ड, वी डू नॉट नो whom does this belong to. If you would have registered it and then it is found, then it is said, okay, it has been stolen, then we can marry that up because it's in the system. Otherwise, there are so many things which are unclaimed that we have sitting in our room that we have to get send into auction. दूसरा मेन चीज़, आजकल ये स्कैम आया है कि सब फ़ोन करते हैं और इमिग्रेशन का नंबर आता है फ़ोन पे और अब बोलते हैं कि तुम ये दिन आए थे, ये दिन आई थी और तुम्हारा ये वीज़े के लिए तुमको ये पैसे, इतना पैसा देना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट अदरवाइज यू विल गेट डिपोर्टेड। ऐसे अगर फ़ोन कॉल्स आए, प्लीज़ पैसे मत दीजिए। कोई इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पैसे फ़ोन पे नहीं मांगेगा। सो प्लीज़ एडवाइज ऑल योर फ्रेंड्स, इफ़ यू नो समवन प्लीज़ टेल देम दैट फ़ोन पे वो सब स्कैम्स होते हैं। इवन दो मोबाइल पे आपको इमिग्रेशन का नंबर फ्लैश होगा, फिर भी वो इमिग्रेशन में से नहीं आता, वो सब हैकर्स हैं, वो फेक फ़ोन कॉल्स करते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर एंड रिपोर्टेड, एवरीथिंग शुड बी रिपोर्टेड। ये जस्ट नॉर्मल है, आप लोग जब बीमार हो प्लीज़ मेडिकल सेंटर जाइए, पैसा न बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो ज़्यादा बीमार हो जाओ, पता नहीं है आपको क्या हुआ है क्या नहीं, यू नीड टू गेट इट सॉर्टेड। सबका बिहेवियर यहाँ पे डिफरेंट होता है, लोग अलग होते हैं सब, तो वी हैव टू वैल्यू द डाइवर्सिटी। अगर हम चाहते हैं कि हमको सब एक्सेप्ट करें तो सबसे पहले तो हमें सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे वो हैं। उनकी मजाक उड़ाना और उनको अंडरमाइन करना, इट इज़ नॉट आइडियल, इट इज़ नॉट द वे। इफ़ वी डोंट वांट टू बी mocked at, we can't mock at anyone else as well. That's just the basic thing. Street smart is very important. You need to know everyone's body language when you are walking, especially international students जो गाड़ी नहीं चलाते, चल के आते हैं। It is so easy being a police officer. जब एयरपोर्ट पे थी मैं तो हम ऐसे साइड में कॉर्नर में खड़े रह के देखने का कौन कैसे जा रहा है, खाली देखने से पता चलेगा ये बंदा जा रहा है, जरूर ये मिनिस्टर होंगे। हाँ, ये जा रहे हैं, ये प्लेयर्स होंगे, और पुलिस ऑफिसर अंडर कवर भी हो, पता चल ही जाता है। So you know, if you stand one day on the side of the road and look at people, you will easily find out कौन क्या कर रहा है, प्रोफेशन में क्या होगा, and who is newbie in the country. So think about it. Think as a offender's perspective. If you were an offender, what would you think? तो easily पता चल जाएगा कि you will be so vulnerable कि हाँ देखो ये क्या है, वो क्या है, whatever, और फिर हेडफोन्स लगा के चल रहे हैं इतना आईफोन लेके, ईजी, फिर आईफोन कोई खींच के भाग जाएगा एंड यू विल हैव नो क्लू कौन लेके गया। सो बॉडी लैंग्वेज इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ आप कॉन्फिडेंटली चलिए। और नई वर्क वीज़ा पे मैंने काफ़ी लेडीज मैं जानती भी हूँ, वर्क वीज़ा पे आती है, हस्बैंड स्टूडेंट वीज़ा पे, वाइफ वर्क वीज़ा पे, नई शादी करके इतना चूड़ा शादी का पहन के, सोने का सब पहन के फिर आप चलोगे, शाम को जॉब पे से आओगे, you are an easy target. Everyone would know that you are a newbie because you are walking back home. You are having gold jewelry and all this bindi and all. What do you expect? You know, yes, New Zealand is a very nice country. It is comparatively less crime, but it is not a place of demigods. Everyone is human being here.
don't put yourself in a situation where people get an opportunity to do something. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं सबको सजेस्ट करूँगी गाड़ी अगर चलाते हैं तो चाबी और गाड़ी अलग रखें। दूसरा, जीपीएस के अंदर होम सेव प्लीज़ ना करें, क्योंकि कई सिचुएशंस ऐसी आती है, फ्रंट काउंटर पे भी मिलता है कि आपका हैंड बैग स्नैच हो गया, उसमें गाड़ी की चाबी, घर की चाबी भी है, तो बंदा जाएगा, गाड़ी लेगा, जीपीएस में होम डालेगा, होम जाएगा, बर्गल करेगा और एवरीथिंग इज स्वीट, चाबी खोलेगा। सो प्लीज़ ट्राई एज मच as you can not to be that easily vulnerable towards the offenses. अगर आपका कोई पीछा कर रहा है, if you are vigilant enough, try to verify. You need to be very clever on this, because this can be very serious. Change direction, confirm your suspicion. Try to remember description of the person. All the newbies, please remember. सबसे बड़ी बात है, पुलिस को फोन करोगे, पुलिस पूछेगा कौन है, मेल है, फीमेल है, एथनिसिटी क्या है, एज क्या है, कलर क्या है, एवरीथिंग, क्या कौन सा पहना था शर्ट, किस तरफ भागा, कौन सी गाड़ी में गया। डोंट गेट अपसेट, डोंट गेट अनॉयड, यू नीड टू थिंक एज अ पुलिस ऑफिसर। अगर मैं भाग रही हूँ किसी को पकड़ने के लिए, किसके पीछे भागूंगी मैं, किसी ने मेरा पर्स ले लिया, किसने लिया, आई कांट रन विद, I have so many cars running around, which car, I need to know. So don't get annoyed if you are asked questions. तुमको लगेगा कि अभी सवाल ही पूछते रहेंगे कि जाके पकड़ेंगे भी, but don't think that way. जब आपको सवाल पूछ रहे हैं तब वो टाइप भी हो रहा है और वहाँ पे डिस्पैच भी हो रहा है. So when we are in the car, all we know is in Papatoe near Colmar Road at Hunters Corner there is a bag snatch. तो ऑलरेडी जब आपसे बात हो रही है वो हमको कन्वे हो रहा है सर. जब हम निकल रहे हैं वहाँ पे हमको कुछ पता नहीं है, हम लोग पापाटोय तक पहुँच रहे हैं, खाली इतना पता है कि बैग स्नैच हुआ है और इस रास्ते पे हुआ है. जैसे जैसे आप इन्फॉर्मेशन देंगे वैसे वैसे हमको वहाँ पे गाड़ी में मैसेज मिलेगा. सो डोंट गेट अनॉयड, डोंट गेट डिस्ट्रेस एंड डोंट थिंक दैट पुलिस कुछ कर नहीं रही है. प्लीज 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 लेडीज स्पेशली डू नॉट लीव एनी कैश बैग एंड बॉयज सिगरेट्स इन द कार. ये तो सबको पता ही होगा पिन नंबर. ओके, नॉन अर्जेंट थिंग, जैसे कि कोई ऐसा है कि कुछ हो गया है और अभी ऑफेंडर वहाँ पे नहीं है. जैसे आप गाड़ी के पास आए और गाड़ी स्मैश विंडोज है, ऑफेंडर कोई है नहीं, कुछ नहीं है और आप बंद करेंगे. पुलिस तो आई नहीं, पुलिस तो कुछ करती नहीं है. क्या मतलब पुलिस को करने का? यू ऑल नीड टू रिमेंबर it is a non-urgent case. Yes, it is important for you, and yes, in ideal world we should turn up, but you need to remember there is someone who is getting burgled right now, someone is getting raped somewhere, or someone is just getting shot or something. That's where it's a pressing, so that's the urgent things that police will go to. This is non-urgent. Yes, it is important, but it is not non-urgent. Where police आके भी क्या करेगी? Offender तो चला गया, किसी को पता नहीं कौन offender है, तो आप रिपोर्ट प्लीज कराएं. वी विल टेक फिंगरप्रिंट्स एज मच एज वी कैन, विल फाइंड द कैमराज, कुछ भी करके फाइंड आउट करेंगे. बट डोंट जस्ट थिंक कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है इसलिए रिपोर्ट नहीं करना. मैक्सिमम एथनिक बैकग्राउंड में से कोई रिपोर्ट नहीं करता. यही सोच के पुलिस नहीं आती. पुलिस आके क्या करेगी, एज अ पुलिस ऑफिसर अगर आप सोचे तो आपको पता चलेगा. अगेन ऑपरेटर विल आस्क यू सेवरल क्वेश्चंस. प्लीज डोंट गेट अनॉयड. अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती उनको बताइए, आई कांट स्पीक इंग्लिश, कैन यू पुट मी इंटरप्रेटर. प्लीज़ बोलिए, वो इंटरप्रेटर का वो सर्विसेज भी करेंगे. अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन चले जाइए, उनसे बताइए, उनको बोलिए कि आपके यहाँ इंडियन पुलिस ऑफिसर कोई है जो मेरा ट्रांसलेट कर सके. नाउ वी हैव अ लग्जरी टू हैव लॉट ऑफ इंडियन पुलिस ऑफिसर्स इन काउंटीज मनुका, सो आई कैन से यू विल गेट दैट फैसिलिटी. आप विक्टिम हैं, आपके राइट्स हैं. ये आपकी वेबसाइट है, इसमें जाके आपको देख सकते हैं कि आपके राइट्स हैं एज अ विक्टिम. बैग स्नैचेस बहुत बड़ी बात हो गई है अभी. इट इज कंसिडर्ड अ रॉबरी. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बर्गलरी एंड रॉबरी. बर्गलरी इज द वन कि आपके घर में कोई घुस जाता है और चीज़ें लेके भाग जाता है, दैट इज बर्गलरी. रॉबरी इज आपके हाथ में से कोई छीनता है, कोई फोर्स करके लेके जाता है, दैट इज रॉबरी. This is just a small difference.
I know it is not that technically relevant, but still आपको just knowledge के लिए जरूरी है. This kind of thing, back snatch, is considered as a robbery because it is used, force is used. So the seriousness is one step up. It is considered as a serious offense. I really encourage every one of you to report it if that has happened. उस वक्त प्लीज 111 करिए. उस वक्त पुलिस स्टेशन जाने के बाद में पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी, प्लीज मत करिए. अगर वो ऐसा कुछ भी हो रहा है और हुआ है और जानते हैं तो प्लीज फोन तुरंत 111 कीजिए. एंड प्लीज 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 डिस्क्रिप्शन एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सी तरफ भागा, आपके पास सब डिस्क्रिप्शन है लेकिन कौन सी साइड भागा है नहीं पता, तो कहाँ से हम कैसे ढूंढेंगे? दिस इज व्हाट वी रियली रियली विल आस्क. Description, male, female, clothing description, registration, description of the vehicle as well. If you are arrested, God forbid ऐसा कभी भी हो, अगर हुआ भी तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं लॉयर को. वो आपका राइट है यहाँ पे. ऐसा नहीं है कि सीधा आपको जेल में डाल दिया फिर तुमको 3rd डिग्री टॉर्चर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. You have a right to remain silent. You will have a right to speak to a lawyer. वो लॉयर भी एक होगा जो आपको कोर्ट पे भी हेल्प करेंगे. अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और यहाँ के रेसिडेंट नहीं है तो आपको एम्बेसी में भी कांटेक्ट करने का राइट है. यू कैन ऑलवेज आस्क द कस्टडी सर्जन दैट यू वांट टू स्पीक टू योर एम्बेसी इफ यू नो व्हाट यू वांट टू आस्क. सबसे बड़ी बात, वेरी बिग थिंग, फैमिली वायलेंस. आई एम वेरी वेरी सैड टू से दिस, लेकिन ये हकीकत है फैमिली वायलेंस हमारी कम्युनिटी में बहुत बड़ा है. एंड ऑल्सो वर्स्ट पार्ट इज इट इज नॉट रिपोर्टेड ईदर. इट इज अ हश हश थिंग, बट आई एम प्राउडली सेइंग दैट अवर आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन स्टैंडिंग हियर विद माय फेलो कलीग्स एंड माय आदरणीय सब लोग से के पास में खड़े रह के कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकती हूँ कि वी आर ऑल स्टैंडिंग अप टुगेदर टू वर्क अगेंस्ट फैमिली वायलेंस. एंड इट इज़ मोस्ट आई कैन, इस जॉब में सबसे बड़ी एम्बेरसिंग बात यह है कि मुझे इंडियन फैमिली में फ्रंट लाइन में जब जाओ, इंडियन फैमिली कोई या तो कोई सिंह हो या कोई मेहरा हो, कोई उनके यहाँ जाना हो, एंड देन आई जस्ट हैव टू गो देयर से और तुम्हारे इंडियन के यहाँ फिर से मारामारी हुई और द गर्ल गेट्स बीटन अप और women gets beaten up. That's the most painful thing in my job. I don't enjoy that part of my job. Yeah, I know, I'm biased. कोई और जगह जाओ तो तकलीफ होती है, इतनी नहीं होती, लेकिन अपने लोगों को विक्टिम होके या ऑफेंडर लॉकअप करने का, दैट्स नॉट व्हाट आई हैड साइंड अप फॉर. I would prefer to be out of the job when we are not required. Basically, okay, this is getting emotional. Family violence is not accepted. It is taken very seriously. एक थप्पड़ मार दी तो क्या हो गया, धक्का मार दिया तो क्या हो गया, प्यार भी तो करता हूँ. That doesn't work here. It should not be okay, and it should not be tolerated. Women are encouraged to report. It's not because कि husband को torture मिले और जेल में सड़ा दे, लेकिन इसलिए it needs to be addressed. He needs to know it is not okay. You guys can get help. Family violence का इतना holistic approach है. It just blows my mind away कि यहाँ पे न्यूजीलैंड में अगर छोटा सा भी प्रॉब्लम है और पुलिस बुलाती है, पुलिस विल असेस कि क्या है प्रॉब्लम. ओके, जॉब नहीं है इसलिए फैमिली फ्रस्ट्रेशन है, बच्चे का स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा. वी हैव अ वेरी गुड सिस्टम इन प्लेस. वी हैव गॉट एजेंसीज हु कैन सपोर्ट एंड हेल्प. सो प्लीज 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 पुट योर हैंड अप, आस्क फॉर हेल्प. Ask for help, and if you don't know what to do, call me or email me and I can give you guys and refer you guys to the right agencies.